प्रेजेंट होगा जो कि CO2 लिबरेट करेगा। What is the following oxide will react with the substrate? Which of the following oxide will react with the base? कौन सा following oxide है जो base के साथ react करेगा? Means okay तो CaO है हमारा जो कि base means CaOH के साथ react करेगा और white precipitate form करेगा जैसे नाम दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट means CaO plus CaOH twice gives CaCO3 plus H2O. ओके तो CaO रिएक्ट करेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर एंड डिसोसिएशन ऑफ एसिड एंड बेसिस के कैसे वो टूटता है। If a dry strip of blue litmus paper near the mouth of the test tube coming out the hydrogen dry HCl, its color does not change. Okay, when the moist with a drop of water again and brought near the mouth of the test tube, its color turns. यहाँ पर पता चला कि जो लिटमस पेपर है उस पे लिक्विड मींस HCl हमारा कोई भी एसिड हो लिटमस तभी टेस्ट कर पाएगा लिटमस तभी टेस्ट कर पाएगा जब वो डिसोसिएटेड होगा अगर वो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में नहीं टूटेगा वो यहाँ पर H पॉजिटिव को लिटमस इंडिकेट नहीं कर पाएगा। अगर ड्राई HCl जैसे कि एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर कहा कि अगर ड्राई HCl ही लिटमस पेपर के ऊपर लगा रहे हैं तो रेड कन्वर्ट नहीं कर रहा क्योंकि वो डिसोसिएटेड नहीं है। मींस यहाँ पर लिटमस को डिसोसिएट करने के लिए लिटमस को इंडिकेट करने के लिए या फिर वो वाटर एसिड है या बेस है डिसोसिएशन इज नेसेसरी ओनली व्हेन इट डिसॉल्व इन वाटर H positive ions are formed and it shows algeric nature by turning the color of blue litmus to red. Okay, तो यहाँ पर डिसोसिएशन जरूरी है। A similar behavior is exerted by bases if we take a pellet of dry NaOH जो कि dry NaOH वो pellets में होता है छोटे-छोटे चिप्स टाइप में होता है क्योंकि वो NaOH का वाटर के साथ रिएक्शन इज वेरी हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमें नहीं करना चाहिए। बट ड्राई pellet जब हमने NaOH लिया तब हमने रेड लिटमस के कांटेक्ट में रखा तो कोई कलर चेंज नहीं आया लेकिन जब हमने उसे वाटर में डिसॉल्व करके फिर चेंज किया फिर वापस NaOH को फिर वाटर के कांटेक्ट में ले जाकर जब Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में तोड़कर किया तब वहां पर लिटमस ने रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट किया। NaOH is hydroscopic compound as soon absorb nature from the air and become wet. When this happens, the color of red litmus paper immediately changes to blue. Means water means dissociation is necessary for litmus to indicate whether the acid is acid or base is base. Thus the dry NaOH although OH negative are present but they are not free, do not have basic nature. Means जब OH negative अकेला होगा dissociated होगा तभी जाकर हम कह सकेंगे indicate कर पाएंगे कि वो base है। From above discussion, it is that the acid and basic characteristic of the different substance can be observed only when they dissolve in water. When acid like sulfuric acid or base like sodium hydroxide dissolve in water, the solution is formed is water because dissolution is exothermic process. Okay, हमें याद रखना कि जब भी हम dissolve करवाएंगे, dissociation होगा वो एक exothermic process. A part of thermal energy which is released during the dissolution process is used to overcome the forces holding by the hydrogen atom and hydroxyl group in the molecule of the acid and break base the breaking chemical bond and then result in the formation of free H positive और OH negative। जो भी एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज हो रही है वो ही एनर्जी को सॉल्यूशन यूज करता है हाइड्रोजन मींस जो कि Na and OH के बीच में जो बॉन्ड है उसे तोड़ने के लिए। Many bases are ionic compound consist of ions even in solid states. For example, Na positive and OH negative. These ions are held very tight due to strong electrostatic force by the opposite charge. As presence of water as medium solid weakens the force and greatly the ions become free to dissolve. means यहाँ पर water तोड़ dissociation में भी help करता है। और self dissociation of water. Water plays an important role in acid base chemistry. We have seen that it helps in dissociation acid base due to formation of hydrogen ion and OH negative ion. Water itself undergo dissociation process which is called self dissociation of water जिसमें H2O टूटता है पॉजिटिव है OH नेगेटिव में और ऐसा माना जाता है कि H पॉजिटिव और नेगेटिव डिसोसिएटेड
dissociated water is more healthier than complete undissociated H2. The dissociation of water is extremely small and only about 2 of very billion water molecules associated in 25 degrees Celsius. As a result of concentration, H positive and OH negative ions is found in very extremely low at 25 temperature. यहाँ पर सेल्फ डिसोसिएशन प्रॉपर्टी दिखाई गई है कि कब टूटता है, जो कि नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट. न्यूट्रल एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन. ओके, जहां पर H पॉजिटिव ज्यादा होगा वो एसिडिक सॉल्यूशन, जहां पर OH नेगेटिव ज्यादा होगा वो बेसिक सॉल्यूशन, और जहां पर दोनों की अमाउंट इक्वल होगी वो न्यूट्रल सॉल्यूशन. तो न्यूट्रल सॉल्यूशन, द concentration of positive and negative ion remains equal. In other words, a neutral solution in which the concentration of H positive and negative are equal. एसिडिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव ज्यादा, वो एसिडिक सॉल्यूशन, एंड बेसिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन ज्यादा, वो बेसिक सॉल्यूशन. ओके, न्यूट्रल मींस 10 पास आर there is a concentration of H positive and negative, there is no need. Why does the color of dry litmus paper remain unchanged because it is not dissociated? H positive is not free to indicate the help the litmus to test. How does water help in dissociation of acid and base? Break the dissociation process is highly exothermic, means exothermic. The heat evolved during that process is used to break the bond between the bases and acid. Identify the following aqueous solution whether the solution is solution A में OH नेगेटिव ज्यादा है, OH नेगेटिव ज्यादा तो ये होगा बेसिक. सॉल्यूशन B में H पॉजिटिव ज्यादा है तो यहाँ पर होगा एसिडिक, और सॉल्यूशन C में दोनों इक्वल है तो यहाँ पर होगा न्यूट्रल. Next is pH and is equal to, when we are dealing with concentration means pH, जो कि pH पेपर हम क्यों कहते हैं pH पेपर, यहाँ पर pH का फॉर्मूला दिया जाता है, that is the pH is equal to log 1 inverse of H positive ions. Okay, H positive ions just for information, अब 10th के लेवल पर तो ये काम नहीं आएगा, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि जो pH पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ H पॉजिटिव आयन को मेजर करता है कि कितनी कंसंट्रेशन में H पॉजिटिव आयन है. अगर कम कंसंट्रेशन में हो तो वो बेसिक इंडिकेट करता है, और ज्यादा कंसंट्रेशन में हो तो एसिडिक कंसंट्रेट इंडिकेट करता है. ओके, यहाँ पर थोड़ी कैलकुलेशन है, देयर इज नो नीड फॉर सच कैलकुलेशन, जस्ट गो फॉर थ्योरी. Calculation based on pH concept. Calculation based on pH concept. In the last section, we have learned the concept of pH and its relations with hydrogen ions or hydroxyl ion concentration. We some relations of perform some calculations. Okay. Calculate the pH of 0.0001 molar solution of HCl. Okay, तो यहाँ पर okay, तो हम ये अलग से सॉल्व करेंगे. यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो pH, calculate the pH of HCl which have molar concentration 0.001. ओके, तो यहाँ पर HCl की कंसंट्रेशन हमारे पास हुई 1 into 10 raised to power minus 3. ओके, 1 into 10 raised to power minus 3. ओके, तो यहाँ पर HCl की कहा गया है तो वो टूटेगा H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, मींस यहाँ पर H एक है तो यहाँ पर इतने ही H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होंगे, ये हमने मान लिया. मींस H पॉजिटिव इज इक्वल टू 1 into 10 raised to power minus 3. ओके, यहाँ पर हो गया 1 into. नाउ व्हाट इज pH? यहाँ पर ऊपर हमने देखा था कि ब्रैकेट व्हाट इज pH. ओके, व्हाट इज pH? pH इज माइनस log H पॉजिटिव. ओके, माइनस log H पॉजिटिव आयंस इज pH. ओके, माइनस log H positive ion is pH. Minus log H positive ion is pH. Okay, so pH is equal to minus log H positive. H positive ion यहाँ पर कितना है हमारे पास 10 to the power minus 3. Okay, तो minus log यहाँ पर log 10 to the power minus 3 की वैल्यू होती है हमारी the number itself. Okay, so
to the power n log 10 to the power n means equal to वैल्यू उसकी n। ओके, तो ऐसे याद रखना है कि अगर log 10 to the power n means n is any number, तो यहाँ पर log की वैल्यू द नंबर इटसेल्फ ही होगा। ओके, तो यहाँ पर log 10 का -3, तो यहाँ पर होगा माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर pH हो गई उसकी 3, pH हो गई उसकी 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, what would be the pH of aqueous solution or sulfuric acid means H2SO4 in which is molar concentration 5 into 10 to power -3 means 5 into 10 to power -3। एक H पॉजिटिव का यहाँ पर 2 H पॉजिटिव आ रहे हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पर होगा into 2 means 10 into 10 to power -3। ओके, 10 into 10 to power -3 और 1 into 10 to power -4, क्योंकि एक 0 इस माइनस रहेगा तो यहाँ पर एक प्लस हो जाएगा, मींस टोटल हमारे पास हुआ 1 into 10 to power -4 मींस यहाँ पर हुआ 10 to power -4। अब pH फाइंड करेंगे तो माइनस log 10 to power -4 मींस नंबर इटसेल्फ माइनस -4 मींस यहाँ पर +4 उसकी pH हो गई। ओके, +4 उसकी pH हो गई। Calculate the pH of NaOH. Calculate the pH of NaOH having molar solution. pH of 1 into 10 to power -4. Okay, 1 into 10 to power -4 की हमें pH फाइंड करनी है। यहाँ पर OH नेगेटिव है हमारा 1 into 10 to power -4, 1 into 10 to power -4। ओके, तो हमें पता है कि P of H and plus P of H equal to 14। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव मिलकर टोटल हाउ मेनी pH स्केल पर टोटल वैल्यू है हमारी 14। ओके, तो ये हमें याद रखना है, ये रिलेशन हमें याद रखना है, इसलिए मैंने पहले बता दिया, मैं कंफ्यूज ज्यादा कि कहां से आ गया। ओके, तो हमें मिला कि H माइनस इज इक्वल टू 1 into 10 to power -4, तो POH इज इक्वल टू कितना हुआ? POH हमारा हुआ 10 to the power माइनस log 10 to the power -4 मींस माइनस माइनस प्लस 4। ओके, तो POH हमारा हुआ 4 मींस POH इज इक्वल टू 4 और हमें पता है POH प्लस PH इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पर POH पे 4 प्लस PH इज इक्वल टू 14, तो PH इज इक्वल टू 14 माइनस 4 विल बी 10। ओके, तो PH पॉजिटिव विल बी 10। ओके, PH पॉजिटिव विल बी 10, तो हमारा PH हुआ 10। फिर बेस का ऐसा फाइंड करना है, अनदर आया। ओके, अनदर calculate the pH of solution in which concentration of hydrogen ion is 1 into 10 to the power -8। तो यहाँ पर सिंपल है, यहाँ पर concentration of H पॉजिटिव दे दी तो वही हमें चाहिए था, मींस माइनस log concentration of hydrogen ion means 10 to the power -8। ओके, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू -8 हो गई और बाहर माइनस ही है, माइनस माइनस प्लस, तो pH will be 8। pH स्केल। ओके, तो पहले यार ये लोगों ने pH स्केल नहीं बताया, pH। ओके, तो 7 is neutral, less than 7 is acidity and greater than 7 is basicity। यहाँ पर मैंने कहा था pH में सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू है 14। ओके, ये हमें याद रखना है, पहले ये बताना चाहिए था फिर वो क्वेश्चन देना चाहिए था। then once we increase and decrease the resistance, ओके, तो pH is equal to 14 हमें याद रखना है। ओके, यहाँ पर pH रेंज दी है, HCl की 0 मींस वो है हाईली एसिडिक, स्टमक में जो एसिड होता है उनकी pH 1 होती है, लेमन जूस की pH 2 होती है, विनेगर की 3 होती है, ऑरेंज की 3.5 होती है, सोडा ग्रेप्स की 4 होती है, सोर मिल्क की 4.5 होती है, फ्रेश मिल्क की 5 होती है, ह्यूमन सलाइवा की 6 to 8 होती है, प्योर वाटर की 7। अब ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड में अंदर प्लाज्मा है जो कि मैक्सिमम कंटेंट कैरी करता है ब्लड का, उसका 7.4 होती है, एग व्हाइट की pH 8 होती है, सी वाटर की भी 8 होती है, बेकिंग सोडा की 9 होती है, एंटासिड मींस जो हम एसिडिटी के टाइम जो मेडिसिन लेते हैं उसे एंटासिड्स कहते हैं, उसकी
10 होती है अमोनियम वाटर की, 11 होती है लाइम वाटर की, 12 होती है ड्रेन क्लीनर मींस कपड़ा धोने में ड्रेनेज क्लीनर को, 13 होती है और कॉस्टिक सोडा मींस NaOH की 14 pH होती है। ओके, तो यहाँ से जब हम किसी भी सब्सटेंस को डिसोसिएट करके मींस वाटर में डिसॉल्व करके pH पेपर अंदर डालेंगे तो ये हमें pH स्केल है मींस इनमें से कोई एक कलर इंडिकेट करेगी जिससे हमें पता चलेगा कि अगर इसके रिलेटेड कलर आ रहा है तो वो pH 4 है। ओके, ऐसे थियरी है, नो नीड टू हमें ऑलरेडी पता है। इंपॉर्टेंस ऑफ pH, ओके, pH इन ह्यूमन एनिमल, अगर हमारी pH है ब्लड की 7.0 to 7.8, अगर 7 में से 6.8 हो गया हमारा, 6.9 भी हो गया तो वी विल डाई। अगर 7.8 में से 7.9 भी हो गया pH देन वी विल डाई। ओके, तो दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ pH की इनके बीच में ही रहना चाहिए वरना हम जी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इज एसिड। ओके, एसिड रेन की pH होती है 5.6 मींस दे आर वेरी हार्मफुल एंड एक्वेटिक लाइफ के लिए भी बहुत डेंजरस है जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ एक्सटिंक्ट हो सकती है। नाउ pH इन प्लांट मींस प्लांट्स भी सॉइल्स की pH को इंडिकेट करेंगे। अगर ज्यादा एसिड रेन होगी तो सॉइल की pH भी कम हो जाएगी जिसकी वजह से प्लांट भी ग्रो नहीं कर सकेंगे, सॉइल हाईली एसिडिक हो जाएगी देन प्लांट्स हेल्दी ग्रो नहीं कर पाएंगे। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर यहाँ की pH हमारी एसिड में 3 है, स्टमक की एसिड 3 है तो अगर वहां पर भी pH बढ़ गई तो हमें एसिडिटी हो जाती है। अगर ज्यादा बढ़ गई देन आवर स्टमक विल बर्न आउट एसिड की वजह। दैट्स व्हाई यू कैन रीड एसिडिटी के रीड करेंगे वी आर यूज्ड टू टेक एंटासिड्स व्हिच आर बेसिस मींस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है और मींस अंदर एसिड है और हम बेस लेंगे मींस इट विल न्यूट्रलाइज इधर वी ऑलरेडी नो द रिएक्शन दैट इज एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। हाँ, कई टाइप सेल जो प्लांट्स होता है वो सेल्फ मैकेनिज्म में भी, जैसे नेटल प्लांट में फाइनिंग हेड्स व्हिच इंजेक्ट मिथेनोइक एसिड। ओके, इंसेक्ट्स भी अपने आप में एक एसिड रखते हैं जैसे कि एंट्स है मिथेनोइक एसिड, एंट्स में मिथेनोइक एसिड, हनी बीज में मिथेनोइक एसिड होता है। एक नेटल प्लांट है जिसमें हेड्स में मिथेनोइक एसिड, अगर वो प्रोटेक्शन के लिए ऐसे सब डिवाइसेस अपने आप में डेवलप कर रखते हैं। मींस टूथ देखिए, अब टूथ है ना हमारा वो कैल्शियम फोस्फेट से बना होता है, या टीथ है हमारा वो कैल्शियम फोस्फेट से बने होते हैं, व्हिच आर हार्डेस्ट थिंग इन आवर बॉडी। ओके, व्हिच आर हार्डेस्ट थिंग बट वेरियस फूड्स वी ईट मींस ऐसे हम एसिडिक फूड ज्यादा हम खाते हैं, हम ऐसे एसिडिक फूड सब ज्यादा खाते हैं बर्गर्स एंड ऑल जिसमें माउथ की pH फॉल हो जाती है अप टू 5.5 बिलो 5.5 चली जाती है जिसकी वजह से टूथ एनामेल भी डिके होना शुरू हो जाता है, दांत सड़ने लगता है, टूथ डिके से हम सफर करते हैं। pOH of solution is 5.2. What is pH? Means simply 14 में से 5.2 को माइनस कर दो तो हमें मिलेगा pH. pH of solution is 9. What is concentration of H positive? Then is concentration of H positive is 9. Okay, तो concentration होगा 10 to the power minus 9. What is the nature of one solution? Okay, ये neutral, acidic and basic. यहाँ पर अब next है हमारा salts. मीन हमें पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमें क्या मिलता है, salts मीन acid plus base gives salt. NaCl K NO3 MX. ओके, यहाँ पर हमें salts मिला। Actions of salt means metal plus acid हमें salt जो कि ऊपर के रिएक्शन में वापस एक बार दिखा रहा है जहाँ पर salt हमें फॉर्म, यहाँ पर metal salts फॉर्म हुआ है। CaCO3 पर HCl gives CaCl2 यहाँ पर हमारा salt है और यहाँ पर salt हमारा NaCl हमारा salt है। यहाँ पर already we go through this reaction with salts of acid and salts of base. means salt of acid यहाँ पर neutral salt solution basic neutral, यहाँ पर pH उसका दिया गया है। means अगर neutral होगा तो 7 होगा, basic होगा तो greater than 7 है, acidic होगा तो less than 7 pH होगा। You already know this. Some common use of salt. Salt के some common uses. Okay, जो salts है हम कहाँ यूज, बेकिंग सोडा एक हमारा salt है, केमिकली बेक्ड सोडा जो कि हमने सोडियम कार्बोनेट। You must mother used baking soda while cooking in dals
If used, why should use it? Okay, the helping cooking some item faster and otherwise you must take it. क्योंकि कम टाइम में अच्छे से बॉईल करने के लिए, अच्छे से कुक करने के लिए हम बेकिंग सोडा डालते हैं. ओके, तो मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग सोडा इज वेरी, जिसे नाम दिया गया है सॉल्वे प्रोसेस. ओके, बेकिंग सोडा को बनाने का है सॉल्वे प्रोसेस, जिसमें इधर पढ़ेंगे हम कैसे बनता है. Raw materials are limestone, which is CaCO3, NaCl, which is NaCl solution, brine solution जिसे हम कहते हैं, and next is ammonia. तो यहाँ पर CaCO3 को डिकम्पोज किया जाता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन CaCO3 को लाइमस्टोन को CaO and CO2 में रिलीज किया जाता है. यहाँ पे जो CO2 रिलीज हो रहा है, ओके, CO2 रिलीज हो रहा है, उसमें NaCl और अमोनिया को मिक्स करके और हाइड्रोजन को CO2 गैस में से पास किया जाता है, जिसकी वजह से NaCO3 हमारा बेकिंग सोडा यहाँ पर फॉर्म होता है. ओके, NaCO3 sparingly soluble in water crystallize out white crystals which is solution in water is basic in nature. It is mild and corrosive base. Action of it on heating sodium hydroxide, carbonate is converted to sodium carbonate and carbon dioxide is given off. NaCO3 N2CO3 में फॉर्म हो जाता है, Na2CO3 में और H2 and CO2 रिलीज हो जाता है. यूज है बेकिंग सोडा के यहाँ पर यूजिंग कुकिंग इन सर्टेन फूड्स फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर. ओके, कार्बोनेट यहाँ पर केक्स एंड पेस्ट्रीज में फ्लफी एंड सॉफ्टी बनाने के बेकिंग पाउडर इन समटाइम्स इन मेडिसिन बीइंग माइल्ड एंड कंट्रोल बेस, वो मेडिसिन में यूज होता है जैसे कि एंटासिड्स में, एंड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स. ओके, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज. नेक्स्ट इज वॉशिंग सोडा. ओके, पॉटेड वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, यहाँ पर 10H2 के मॉलिक्यूल उसके साथ एसोसिएटेड है. तो वॉशिंग सोडा इज यूज्ड फॉर वॉशिंग द क्लोथ्स. इट इज मेनली बिकॉज़ द केमिकल व्हेन क्लोथ्स वॉश वॉशर में अपीयर सो व्हाइट. ओके, मैन्युफैक्चर यहाँ पर NaCO3 जो हमने बनाया था उसे हीट कर रहे थे, तो Na2CO3 यहाँ पर फॉर्म हो रहा था. तो Na2CO3 को जब हम 10H2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब हमें मिलेगा वॉशिंग सोडा, जिसके यूजेस है इट इज यूज्ड टू मेक, मतलब इसमें से ही कॉस्टिक सोडा फॉर्म किया जाता है. कॉस्टिक सोडा ग्लास सोप पाउडर्स और रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर क्लींस किए जाए, और वॉशिंग में यूज होता है Na2CO3. नेक्स्ट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, मींस CaSO4.HH2O और CaSO4.half H2O. ओके, ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस POP. मैन्युफैक्चर जिप्सम मींस CaSO plus 2H2O में से हाफ H2O निकालते हैं तो हमें मिलता है POP. ओके, तो यहाँ पर जिप्सम को जब हम हीट करेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा CaSO4 plus half H2O. तो यहाँ पर हमें ये मिला प्लास्टर ऑफ पेरिस. अब हमें पता है कि POP को अगर हम गीला कर दे, वेट कर दे, तो फिर थोड़ा टाइम के बाद वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि हम फ्रैक्चर्स में यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो वापस जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है. यूजेस हो गया यहाँ पर. इट इज मेकिंग कास्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ टॉयज एंड स्टैचूज. ओके, मैं POP यूज इन मेडिसिंस. प्लास्टर ऑफ तो होल फ्रैक्चर बोन्स इन प्लेस व्हाइल दे आर सेट. ओके, वहां पर डेंसिटीज में भी POP यूज होता है और फ्रैक्चर्स में भी. फॉर मेकिंग द सरफेस ऑफ वॉल्स एंड सीलिंग स्मूथ, ऊपर जो सीलिंग में हम POP लगवाते हैं, डिजाइन करवाते हैं, वो POP. For making decorative designs on ceiling, walls and pillars. For making chalk. Okay, chalk और writing of chalk में यूज होता है. For making fireproof material, क्योंकि POP फायर नहीं लेता. Next is bleaching powder. Okay, COCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. हमें याद रखना है bleaching powder. Have you ever wondered that bleaching powder जो bleach करने में हम हेल्प करते हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2. रॉ मटेरियल से स्लीक लाइफ CaOH और क्लोरीन गैस. ओके, जिसके हम दोनों को मिलाकर जब हम रिएक्शन करवाते हैं, CaOH plus Cl2, यहाँ पर CaCO2 फॉर्म होता है और H2O प्रोड्यूस होता है. यूजेस है उसका ब्लीचिंग एंड कॉटन एंड लाइनिंग. यहाँ पर स्पेशल टाइप ऑफ क्लॉथ्स को वॉश करने में हेल्प करते हैं. इन पेपर इंडस्ट्री हमने देखा कि क्लोरीन फ्री पेपर है, तो वहां पर पेपर्स को वाइट करने के लिए क्लोरीन यूज किया जाता है, जो कि यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर होता है. इन मेकिंग वूल अनश्रिंकेबल, वूल श्रिंक ना हो इसके उसमें भी यूज किया जाता है. यूजेस डिसइंफेक्टेंट एंड जर्मिसाइड फॉर स्टराइजेशन ऑफ वाटर में भी
मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट जो हमने पढ़े उनके मैन्युफैक्चर रिएक्शंस पढ़ी, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है इसलिए इजी टू रिमेंबर होगा। एक्सरसाइज आप खुद सॉल्व करना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। और द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज लास्ट फोर सब्सटेंस जो कि हमने पढ़े, एक तो बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, पीओपी, जिप्सम एंड ब्लीचिंग पाउडर। ओके, ये 6 दे आर वेरी यूजफुल। So today we are going to start the new chapter of chapter number 19 of classification of organism. अब classification and organisms, okay, classification of organism, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ हमें फैक्ट्स दिए हैं, कुछ डू यू नो दैट वाले फैक्ट्स दिए हैं, वो हम पढ़ेंगे एक बार, फिर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करेंगे। डू यू नो दैट अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम of 8 planets on which life exists। ओके, हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही ऐसा एक प्लेनेट है जिसमें लाइफ एग्जिस्ट करती है, लाइफ है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिराइव मोस्ट ऑफ देयर रिक्वायरमेंट फ्रॉम सर्वाइवल फ्रॉम द नॉन लिविंग सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मींस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी है वो सारे के सारे रिसोर्सेज के लिए नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, Every organism begins life as a single cell। अब तक जितने भी organisms है वो सारे उन सारों ने अर्थ पर as a single cell लाइफ स्टार्ट की है। लेकिन जब हम बात करें ह्यूमंस की, ओके, ह्यूमंस की भी हम बात करें ह्यूमंस की, तो वो भी एक सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल होता है जिसे जाइगोट कहा जाता है। ओके, जाइगोट कहा जाता है जो कि प्रेजेंट होता है वॉर्म में, ओके, मदर्स वॉर्म। तो ह्यूमंस ले ले या फिर कोई भी एनिमल ले ले, वो सारे पहले एक सिंगल सेल होते हैं, then they become more complex and multiply themselves। There are plants which eat insects, okay, ऐसे प्लांट्स भी है जो इंसेक्ट्स खाते हैं, जिसका नाम दिया गया है insectivorous plants। Next the mushrooms that we release as vegetarian foods। आप बन जाओगे तो हमें पढ़ा, हमने नहीं देखा अभी तक कि, लेकिन जो मशरूम है हमारे, मशरूम एडिबल जिसे हम खा सकते हैं, they are nothing but they are fungi। okay, they are fungi। The fungi are the group of organisms which subsist on dead and decayed material। okay, तो fungi ऐसा किंगडम है एनिमल्स का, प्लांट्स का, मींस जो 5 किंगडम हमारे क्लासिफिकेशन थे, जिसमें हमें पहला देखा था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, थर्ड था फंजाई, फोर्थ था प्लांटी एंड फिफ्थ था एनिमेलिया। तो ये प्लांट जो फंजाई में आते हैं हमारे मशरूम जिसे हम एज अ वेजिटेरियन खाते हैं, जो डेड एंड डिकेड मटेरियल मींस सड़े हुए मैटर पे वो फीड करते हैं। ओके, सर्टेन बैक्टीरिया लिव इन द ओशियनिक वेंट्स एट टेंपरेचर हाई एज 80 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, दिस बैक्टीरिया आर नोन एज आर्कीबैक्टीरिया। Which has a strong resistive cell। okay, तो इतनी स्ट्रॉन्ग और रेजिस्टिव सेल वॉल की प्रेजेंस होने से जो कि कुछ बैक्टीरिया है जिसे आर्कीबैक्टीरिया कहा जाता है, आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप है बैक्टीरिया का, जिसमें रखा गया है क्योंकि वो
ज्यादा हाई टेम्परेचर पर वो एग्जिस्ट कर सकता है, जो कि हो गया 80 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। नोट दैट द टेम्परेचर इन व्हिच यू फील अनकंफर्टेबल ऑन अ सनी डे or a night or an ice cold winter night will be give a good idea of how high the temperature at which these bacteria grow। तो आपको पता फील हो सकेगा कि आप जो सनी डे पर ओके ज्यादा से ज्यादा हॉट हमारा होता है 45 डिग्री सेल्सियस, ओके 45 डिग्री सेल्सियस, और ज्यादा से ज्यादा कोल्ड होता है अपने हमारे लोकेशन में वो होता है 10 डिग्री सेल्सियस, ओके मिनिमम इतना या फिर 8 मिनिमम 8 होता है, ओके। तो यहाँ से हम इतना कोल्ड विंटर को अनकंफर्टेबल फील करते हैं, मींस हम बेयर नहीं कर पाते। तो सोचो कि बैक्टीरिया 80 डिग्री सेल्सियस और 120 डिग्री सेल्सियस पे कैसे सर्वाइव कर रहे होंगे। This lesson deals with the diverse kinds of organisms found on the earth, mean different kind of organisms found on the earth and the ways and the means of studying this vast biodiversity. It also emphasizes the need of conservation of biodiversity, means इतनी ज़्यादा vast range of biodiversity Earth have wide range of बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन के लिए भी पॉइंट होता है कि यार इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है हमारी, तो एक टाइम ओके सम टाइम दिस कैन बी एग्जिस्ट, ओके। तो कभी भी वो एग्जिस्ट हो सकते हैं, हमें उनको प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन देनी चाहिए। इसकी वजह से क्योंकि डायवर्सिटी है हमारी, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है जो कि अर्थ को डिफरेंट वेज में हेल्प कर रहा है फॉर मेकिंग इट अ सूटेबल प्लेस टू लिव, ओके। तो अर्थ को ज्यादा से ज्यादा हेल्प कर रहा है, डेवलप कर रहा है। जैसे कि हम छोटे से ऑर्गेनिजम्स की बात कर ले जिसमें आता है हमारा अर्थवर्म, ओके। अर्थवर्म हो गया हमारा, अर्थवर्म फार्मर्स, ओके, फ्रेंड ऑफ फार्मर कहा जाता है, ओके। तो अर्थवर्म हो गया, वो सॉइल को न्यूट्रिटिव बनाता है, ओके। कोई भी सॉइल में से अगर अर्थवर्म पास हो तो उसकी जो सॉइल होती है वो लेयर्स को वो मिक्स करता है और ज्यादा न्यूट्रिटिव बनाता है, जिसकी वजह से ज्यादा क्रॉप वहां पर ग्रो हो सके, ओके। तो यहाँ पर इतनी वास्ट डाइवर्सिटी है हमारे अर्थ पर, तो हमें वो भी उनके प्रोटेक्शन के लिए, उनकी स्टडी के लिए, ओके। और ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो उनको कोई हार्म ना हो, ओके। तो यहाँ पर हम कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। रिकॉग्नाइजिंग द वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन टर्म्स ऑफ वैरायटी ऑफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ओके। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स present on the earth at that time, okay। Describe the levels of biodiversity। कौन से लेवल पर biodiversity? Appreciate the need for classification of living organism। Appreciate the need for classification means classify करने की, differentiate करने की, उनको different kingdoms में डालने की, groups में डालने की, class, order, family में डालने की क्यों need हुई, हमें जरूरत क्या पड़ी, okay। Justify the rationale underlying the five kingdom classification and the hierarchy in classification of living organisms, okay। तो यहाँ पर five kingdom classification पढ़ेंगे और कौन से basis पर five kingdom classification में उन्हें डाला गया। Argue in favor of binomial classification with example। तो हमारा binomial classification जो था, जो कि दिया था कार्लस लीनियस ने, okay। कार्ल वॉन लिन, कार्लस लीनियस दोनों एक ही है, कार्लस लीनियस एंड कार्ल वॉन लिन। तो यहाँ पर जो आर्ग्यू विद फेवर मींस बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ने यहाँ पर नेमिंग किया था, ओके। नोमेनक्लेचर मींस
नेमिंग किया था, एक वे सजेस्ट किया था जिसकी हेल्प से हम ऑर्गेनिजम्स को नाम दे सके, तो उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। क्लासिफाई किंगडम प्लांटी अप टू डिविजन्स, किंगडम एनिमेलिया अप टू फाइला एंड कॉर्डेट्स अप टू क्लास। ओके, तो हम प्लांटी के फाइलम्स पढ़ेंगे। ओके, देन किंगडम के एनिमलिया के फाइलम पढ़ेंगे एंड कॉर्डेट्स। ओके, जो कॉर्डेट्स हम कहते हैं, जिसे कॉर्डेट्स देखेंगे, हम क्लासेस पढ़ेंगे। Be aware of and take step towards the conservation of biology। ओके, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी क्यों जरूरी है, उसके पीछे क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उसके बारे में आपको अवेयर रहना। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। ओके, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर बायो मींस अर्थ एंड डाइवर्सिटी मींस वैरायटी। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स की जो अर्थ पे डाइवर्सिटी है, वैरायटी है, we saw that there are various types of different animals present on the earth according to the location and their geometrical signs. Okay, we find living organisms all around us, even deeper under oceans in the Antarctic and Antarctic। Okay, तो हम अपने आजू बाजू जहाँ देखो वहाँ हमें ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं। जो बात कर लो काऊ की, डॉग की, क्योंकि हमारे लोकल एरिया में हमारे साथ रहते हैं, और उनकी भी हम बात कर सकते हैं जो कि एंटार्क्टिका में आइस के अंदर रहते हैं। ओके, इतनी ठंडी में एंटार्क्टिका और आर्टिक ओशंस में वहां पर रहते हैं। These are the organisms which are single celled and microscopic, as well as animals as large as elephant। ओके, छोटा से छोटा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी, एनिमल्स भी हम देख रहे हैं, और बड़ा से बड़ा एलिफेंट, राइनोसोरस एंड हिप्पोपोटामस एंड द व्हेल भी हम यहाँ पर देख रहे हैं, जो कि हुआ एक डाइवर्सिटी। मींस छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर हम मॉस्किटो भी देख रहे हैं, एंड बड़े से बड़ा, ओके, बड़े से बड़ा जो कि व्हेल हो गया, यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर्स का होता है और कुछ कई किलोमीटर्स का होता है। Have you seen the movie Jurassic Park by Steven Spielberg? From a movie you get an idea of how huge the dinosaur is। Okay, तो आपने जुरासिक पार्क मूवी देखी होगी, जिसमें देखा गया कि कितने बड़े डायनासोर्स होते हैं, जो कि वो यहाँ पर अब एग्जिस्ट नहीं करते। उनकी भी एक थियरी है कि कुछ नेचुरल कैलेमिटीज आने की वजह से यहाँ पर जो डायनासोर्स थे वो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और उनके फॉसिल्स भी हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पर वो भी एक डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि प्रेजेंट हुआ करते थे, जिनके हमारे पास एविडेंस है, तो उसे भी हमने डाइवर्सिटी में इन्वॉल्व किया। Dinosaurs which roamed the earth millions of years ago and then become extinct। Also, if you were to take the drop of water from a nearby pond and leave it under the land, so you will amazed to see the enormous variety of organisms moving about in a drop of water। अगर नियरबाई पॉन्ड से वन ड्रॉप ऑफ वाटर में सम वाटर लेके आओ, और उसे ड्रॉप ऑफ वाटर लेके आओ और उसे माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करो, तो आपको भी वहां पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे पानी में प्रेजेंट होते हुए। ओके, यू माइट बी वंडरिंग हाउ मेनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑन द अर्थ। ओके, हाउ यू माइट, आपको पता चलेगा कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, तो आपको भी शॉकिंग फील होगा। ओके, and organisms have been found on the earth, including the ones that lived in the past। However, scientists have till date identified only over 2 million of them। Okay, means यहाँ पर 2 to 3 million ही organisms यहाँ पर डिस्कवर कर पाए साइंटिस्ट, लेकिन जो अप्रोक्सीमेट लगाया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने होंगे, वो उनसे कई ज्यादा है। The enormous variety, okay, the max जो variety है, the enormous variety of organism in this term as biology, the variety of organisms present on earth is known as biodiversity। Bio means life and diversity means variety। There is not only diversity in size among the organisms, यहाँ पर हम सिर्फ diversity in size नहीं देख पा रहे हैं, means सिर्फ साइज में ही चेंज नहीं आ रहा, but also in the complexity।
but also in the complexity means कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनकी सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ लेवल है जैसे कि ह्यूमंस हो गया, बाकी एनिमल्स हो गए जो कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे यहाँ पर पूरा वर्क करते हैं. ओके, there is not only diversity in size among the organism but also in the complexity. Example, bacteria are the simple cell organisms and humans are made up of a trillion cells are highly complex. Humans are made up of trillions of cells means one एक के पीछे यहाँ पर 9 जीरो लगेंगे तब जाकर ट्रिलियन होंगे और made up of trillions of cells and they are highly complex and they are grouped the trillions they are grouped under certain working as a unit, as a tissue, as a organ or as a organ system. Okay, तो यहाँ पर बैक्टीरिया है जो कि एक सेल से पूरे एग्जिस्ट कर रहा है और यहाँ पर ह्यूमंस की बात करते हैं उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट. All organisms have come to exist on earth because of evolution. Okay, all organisms become exist on the earth because of evolution and are related through the ancestry. Means यहाँ पर आज के टाइम पर जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है अर्थ पर वो सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है सिर्फ इवोल्यूशन की वजह से ही प्रेजेंट है, क्योंकि जो पहले ह्यूमंस हुआ करते थे वो यहाँ पर बहुत एडप्ट हुए मीन्स एडप्टेशन विथ एनवायरमेंट. तो पहले जो ह्यूमंस हुआ करते थे वो एडप्ट हुए हैं अपने सराउंडिंग के साथ, उन्होंने जगह बदली, डिफरेंट प्लेसेस पर रहने गए. ओके, और यहाँ पर एडेप्टेशन शो किया और धीरे धीरे इवॉल्व हुए, जो कि इवॉल्व का सिंपल मीनिंग होता है हमारा, अगर कोई बोले इवोल्यूशन को डिस्क्राइब करो 3 वर्ड्स में तो यहाँ पर हम कह सकते हैं डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन. ओके, जैसे जैसे मॉडिफाई किया खुद को, कुछ ना कुछ अच्छा एडप्ट करते गए जिसे नाम दिया गया है इवोल्यूशन. ओके, डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, आपको याद रखना है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन आर रिलेटेड थ्रू आवर एंसेस्ट्री. मींस हमारे जो पूर्वज थे उनसे भी कहीं ना कहीं हम लिंक्ड हैं. We shall learn about the evolution and its mechanism in next chapter, history of life on earth. The humans are the top of the evolutionary ladder. Okay, the human है वो top पर है by talking about evolution. It is said there's lots of different kind of organisms that have been lost due to the impact of human activities. Therefore, we have to be conscious and aware that so the damage to the earth and we are living along with other organisms is avoided. अब यहाँ पर मेन बात कर ली कि हम हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज यहाँ पर है. ह्यूमन एक्टिविटीज जिसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ तो इसका हम एग्जांपल देंगे जो कि हमारा पहले फॉरेस्ट हुआ करता था. ओके, हमें पता है that majority of the land is used to be a forest. ओके, वो फॉरेस्ट हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स की क्वांटिटी बढ़ी, पॉपुलेशन बढ़ी, तो रहने के लिए जगह को डिमांड हुई. ओके, डिमांड फॉर लैंड हुई. जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, डिमांड फॉर लैंड, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे रहने के लिए डिमांड बढ़ी और ह्यूमंस ने, क्योंकि फॉरेस्ट था जहां पर अब बहुत ज्यादा वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हुआ करती थी, तो वो फॉरेस्ट काट दी फॉर लिविंग. ओके, तो वहां पर फॉरेस्ट काट दिए जिसकी वजह से जो वहां पर ऑर्गेनिज्म पहले प्रेजेंट थे उनका हैबिटेट लॉस हुआ
ओके, जिसकी वजह से उन्हें कोई प्रॉपर सुटेबल वो अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पाए अकॉर्डिंग टू न्यू एनवायरनमेंट। मींस वहां से उन्हें उनके घर से हमने उनको निकाल दिया और ना वो एडप्ट कर पाए और एनवायरनमेंट में से एडप्ट ना कर पाए, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए। There is not only diversity problem, so वहाँ पर हमें हमारी अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए कि हम कौन से ऑर्गेनिजम्स को कैसी वे में डैमेज कर रहे हैं तो हाँ हम उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। ओके, तो यहाँ से हम अपने ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और there are millions way the animals are useful to us। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे वेज है जिसमें एनिमल्स हमें यूजफुल हो रहे हैं, तो हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स को भी प्रोटेक्शन करवाना चाहिए, जिसकी वजह से आज भी ह्यूमंस की वजह से नेशनल पार्क्स, जूस एंड वो सारे डेवलप हुए जस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग देम एंड मेकिंग देम मच सेफर प्लेस टू लिव, प्रोवाइडिंग देम as habitat as they were using as before। यहाँ पर एक्टिविटीज है। Some calendars are based on birds and wild animals. Collect the pictures from old calendars and make a scrapbook। यहाँ पर एक्टिविटीज है आपको, if you are interested then you can do। Apart from variety of size and complexity, there is a diversity in modes of feeding, reproduction and other following functions among the birds। यहाँ पर birds को जब हम नोटिस करें तो यहाँ पर हम देखेंगे they perform different functions then with them beaks हो गई, यहाँ पर wings हो गया और they have different properties to live। ओके, वहाँ पर different complexities वहाँ पर शो करता है कि कैसे बर्ड अपना जो सर्वाइवेंस है वो कैसे करती है। ओके, now activity 9.3 prepare flow chart using the terms in the given bracket for diversity in reproduction and respiration। diversity in feeding is given as a यहाँ पर न्यूट्रिशन की जब हम बात करें बर्ड्स में तो फीडिंग हो गया, तो यहाँ पर ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक हो गया। मींस ऑटोट्रोपिक मींस ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रोपिक मींस टू मेक फूड। ओके, तो प्रिपेयर फूड, तो व्हिच प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन आर नोन एज ऑटोट्रोपिक। ओके, प्रिपेयर फूड ऑन देयर ओन। ओके, and heterotrophic means depend on others for food। okay, यहाँ पर food from other organisms। तो यहाँ पर autotrophics में there are two types basically। later on there are two types, chemoautotropic and phototrophic। okay, यहाँ पर photo means light and chemo means certain chemical। यहाँ पर जब फोटो की बात करें तो यूजिंग सोलर एनर्जी ट्रैप फॉर फोटोसिंथेसिस एग्जांपल मोस्ट प्लांट्स। क्योंकि यहाँ पर ऑटोट्रॉप्स में हो गया फोटोट्रॉपिक्स। तो यहाँ पर फोटोट्रॉपिक्स के एग्जांपल हो गया हमारे प्लांट जो कि सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, सोलर एनर्जी को यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। और दूसरा हो गया कीमोट्रॉपिक, तो यहाँ पर हो गया कि जो कि केमिकल प्रोसेसेस हो गए, यहाँ पर केमिकल प्रोसेसेस में से केमिकल प्रोसेसेस करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी रिलीज होती है। लाइक सर्टेन बैक्टीरिया क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करते हैं जिसकी वजह से उन्हें एनर्जी मिलती है। और जो बात करते हैं हेटेरोट्रोपिक की, हेटेरोट्रोपिक है थ्री टाइप, होलोट्रोपिक, सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। यहाँ पर होलोट्रोपिक हो गया मींस ईट अदर ऑर्गेनिज्म। मोस्टली एनिमल्स जो करते हैं होलोजोइक में होलोट्रोपिक में, जिसे होलोजोइक भी कहते हैं, होलोजोइक भी कहते हैं। मींस हेलोट्रोपिक में यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म को ही फीड करता है। मींस दूसरे ऑर्गेनिज्म खाते हैं, जिसका एग्जांपल हो गया हमारे सारे एनिमल्स। मोस्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ एनिमल्स do depends on the other organisms for their food। okay, next is saprophytic। means यहाँ पर saprophytic की हम बात करें तो यहाँ पर sapro means dead and decay। okay, dead and decay matter मतलब feed on dead means कोई ऑर्गेनिज्म मर गया है तो उसके पे जाके वो खाना खाएंगे। मींस जो हमारा एग्जांपल हो गया एनिमल की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा
eagles and vultures. Okay, eagles and vultures, which depends on the dead and decay materials. Okay, example यहाँ पर bacteria and fungi भी हो जाते हैं. Fungi तो we already noted. The mushroom, example is the mushroom. Next is the parasitic. The parasitic means the which depends on other organism as a host. Okay, we use other organism as a host. As a host means वो जो एक ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहेगा, उस पे फीड करेगा विदाउट लेटिंग हार्म देम. ओके, obtain food digested by others, a certain bacteria, fungi, plants, animals. means ascariasis is example, जो कि ascariasis है, वो हमारे ह्यूमन इंटेस्टाइन में कई बार प्रेजेंट आ जाता है विद द मूविंग ऑफ सॉइल. अगर हम सॉइल में सॉइल में खेल रहे और हाथ धोए बिना अगर हम खाना खाने बैठ जाए, so there will be more possibility that the ascariasis cell or ascariasis egg enter our body and later on it develop in our intestines and then may infect us. Okay, तो यहाँ पर ascariasis की एक डिसीज यहाँ पर हो सकता है जिसकी यहाँ पर ascariasis ने बिहेव किया लाइक अ पैरासाइट. अगर हम बात करें मॉस्किटो की, मॉस्किटो इज आल्सो एग्जांपल ऑफ पैरासिटिक. मींस वो एंडो एक्सो है यहाँ पर हमारे बॉडी पे ऐसा फॉर ब्लड डिपेंड रहता है. ओके, पैरासाइट वो हमें हार्म पहुंचाता है लेकिन मार नहीं देता. यूज द वर्ड्स गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट like the one about the variety of reproduction and